important thing in these cases is that you just have to put your answer up to 3 decimal places. Otherwise, if you have done all the calculations correctly, but at last if you are going to put 2 decimal, then it is incorrect. Okay, so give some focus towards those also. Okay, so what is happening here, in order to calculating the average atomic mass of the rubidium, average atomic weight it is asked here of the rubidium, we are going to consider both the isotopes. Okay, so that is here 85 rubidium and 87 rubidium. Okay, first we are going to do for the 85 rubidium, then we are going to do for the 87 rubidium. Okay, तो how we are going to do, we just have to do, यहाँ पे abundance कितना है, अगर इसको हम A लिख लेते हैं. Okay, let me just write here. In case of the A, I am going to consider 85 rubidium. Can anybody please let me know what is 85 here? Atomic mass, atomic weight, number of neutrons. What is 85? This is, anybody? What is the definition of the isotope? The same atomic number and different. Then what is different here? The rubidium, it is the same atomic number. Then what are the 85, 87? Those are the atomic masses. Okay, okay. So we are going to do for the 85 rubidium. So in these cases, what is happening? पहले abundance देखेंगे. What is the abundance? Abundance is 72.17%. Okay, and what is the atomic weight of the 85 rubidium? That is given here, 84.192 AMU. Okay, is it clear? Okay, so what is asked, it is contributing, or we can say, if you are going to calculate what is the average weight of the 85 rubidium, that is the 72.17% of 84.912. मतलब इसका 72.17% कैसे निकालेंगे? Simple. If you are going to calculate the average atomic weight of 85 rubidium, तो कितना होगा? That will be 84.192 का कितना परसेंटेज? 912 है. 91. Okay. Thanks for reminding. It is not 192, it is 912. Okay, so this is 912. So it is 72.17 divided by 100. Okay, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? We have the calculator, you can easily do that. That is 84.912 into, simply इसको अगर कर देंगे तो 0.7217. Okay, तो it is coming as 61.92 something. Okay, 61.29 या क्या था? 2809. तो that means 61.281 लिख सकते हैं. Okay, the answer would be 61. Where is the eraser? Eraser is not here. 61.28099 था, तो इसको 281 AMU कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर द 85 रुबिडियम. नाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर द 87 रुबिडियम. तो इसको कैसे करेंगे? सेम थिंग. अबंडेंस कितना है? तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन हियर. इट इज 27.83% and it is 86.909 is the atomic weight of the 87 rubidium. So we are simply going to calculate the 27.83% of 86.909. तो सिंपली इसको कैसे निकालेंगे? तो दैट इज 86.909 into 0.2783. I just simply divided 100 from the 27.83. So it is going to give you, anybody, 86.909 into 0.2783. It is going to give you 24.187 AMU. Then what is the average weight of the rubidium? We have calculated for the 85 rubidium, which is one isotope of the rubidium. Then we got the average atomic weight for the 87 rubidium. Then what is the rubidium के लिए क्या हो जाएगा? तो इसका average weight plus the 87 rubidium. ओके, तो इसके दोनों का एवरेज वेट अगर मिला देंगे तो यू विल गेट द एवरेज वेट. तो इसको अगर मिलाएंगे तो कितना होगा? 61.281 प्लस 61.281 प्लस 24.187. तो इट विल गोइंग टू गिव यू, वी आर गोइंग टू ऐड, तो इट इज गोइंग टू गिव यू 8, 6, 3, 5, 8. तो आंसर विल बी 85.368. ओके, 3 या 4 होगा? हाँ 4 होगा.
8866 यहाँ पे चला जाएगा तो 3 हो जाएगा 4. Okay, so the answer will be 85.468. Okay, is it clear for everybody? This is very easy one, and it is asked in case of the gate also. You will find this type of questions in gate also. There will be no problem. Okay, so I'm just trying to jump into the next question. If anybody सर has a इसको एवरेज निकालने के लिए क्या बोल रहे हो? सर इसका एवरेज निकालेंगे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या? एटॉमिक वेट का दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी. मतलब किसको 2 एवरेज मल्टीप्लाई? एटॉमिक वेट निकाल. वो तो आप बोल रहे हैं कि इसको 2 डिवाइड करना है. नो सर, सर 84.912 प्लस 86.909 डिवाइडेड बाय 2. No. Then ऐसा why करके ये एवरेज निकाल. the abundances are given? So you just take the averages, the 84.912, 86.902. ठीक है, then there'll be no use of abundances. Okay. Okay, Yes sir. what is the meaning actually? So we got a system. So this is a rubidium system. Okay, तो in this rubidium system there is 2 isotope. अगर मान लेते हैं कि ये हो गया rubidium 85, this is rubidium 87. वो ये बोल रहा है ये rubidium 85 का कोई एक atomic weight है, this is given here, and this is rubidium 87 का atomic weight ये है. Okay, तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे total weight कितना होगा. ठीक है, और ये पूछा है कि 85 रुबिडियम आपका ये जो सिस्टम है उसमें 72.17% है, रुबिडियम 87 कितना परसेंटेज है? 27.83%. ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि यहाँ पे जितने भी रुबिडियम है वो जितने भी आइसोटोप्स हैं, यहाँ पे तो 2 हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनमें से इतने इतने परसेंट का ये आइसोटोप है और उनका एटॉमिक वेट ये है. तो अभी बताओ ये जो सिस्टम है ये सिस्टम में कितना रुबिडियम है. ठीक है, तभी आप इसका परसेंटेज निकाल के कर सकते हैं. अगर वो आपको डायरेक्टली एवरेज पूछता कि इसमें अगर 50-50 अगर होता, इफ दिस अबंडेंसेस इज जस्ट लाइक 50% एंड 50%, यू कैन इजीली ऐड देम एंड टेक द एवरेज. ओके रहते हैं ना इन दी प्रीवियस क्वेश्चन कि हाउ टू डू सर, जस्ट टेक एवरेज लाइक दैट, यू विल फेस सम टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम्स हियर. दिस टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन इज हियर. You just have to find out the average atomic weight of the rubidium. So in this cases, what is the atomic weight? Simply 85 and 87. Okay, and the relative abundances just basically 75 and 25%. उसको कैसे करेंगे? Simply अगर उसको देखें तो average atomic weight will be किसका एवरेज एटॉमिक वेट, दैट इज रुबिडियम. तो कितना होगा? 85 इंटू कितना परसेंटेज है? 75%. तो 0.75. ओके, प्लस तो 87 इंटू 0.25. ओके, देन व्हाट विल बी द 85 इंटू 0.75? हेलो, 63.75. ओके, that is atomic mass unit, you can just start, there will be no problem. 73.75. then if you are just trying to multiply 87 into 0.25, what it will be? 21.75 AMU. and if you are going to add them, it is going to give you 550 plus 1 774, that will be 5. then you just have to find out 314628 84.84 कैसे होगा? 774 था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, plus 1 85.50. okay, so the answer will be 85.5, or you can say 85.5. there will be no value, there will be no meaning of this 0, so you can just erase them. okay, you guys are getting now how to do this type of questions. okay, let's see whether there is yes, there is another similar type of question in order to build more फंडामेंटल्स. ओके, तो आपका जो और भी इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू कैन गाइज डू दैट. यू हैव अबंडेंसेस ऑफ द कॉपर 63 एंड 65 रेस्पेक्टिवली, एंड द एटॉमिक मासेस इज ऑल्सो गिवन. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर. हैव टू डू दैट, द सेम थिंग यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट. पहले कॉपर 63 के लिए निकालना होगा, देन इसको निकालना है, देन यू जस्ट हैव टू सम देम. ओके, तो हाउ टू डू दैट? तो 62.930 इंटू 69.17 डिवाइड बाई 100, और यू कैन ईजिली यहाँ पे कर देते हैं 62.930. अरे व्हाट इज हैपनिंग? 62.93
62.930 into 0.69. Anybody who is ready with the answer? The answer will be 43.53. Okay, otherwise you can take 43.529. Okay, तो इसको याद रखना. Okay, then 64.928 ओके तो दिस इज 20.017. ओके तो पहला वाला क्या था 62.930 इंटू 0.6917. एनीबडी दैट इज आई थिंक 43.529. ओके देन उसके बाद ये कितना आया था 20.017. इसको अगर सम कर देंगे तो व्हाट इट विल बी एनीबडी 9764536 63.546. Okay, so this will be the average atomic mass of the copper, which have a different abundances and the atomic mass is already given. Okay, is it clear for everybody? Hello Sir, in case abundance completely 100% add up नहीं हो रहा है तो उस केस में हमको नॉर्मलाइज करना होगा क्या? हाँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 100, यहाँ पे तो 100 है ना 700890. हाँ इट इज़ 100 ना. ओके बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर 100 नहीं है देन यू कैन जस्ट यू कैन जस्ट रिकैलकुलेट देम बाय जस्ट मेकिंग देम 100. वो वाला कैसे करना है पता है ना. तो अगर मान लेते कि ये 60 होता एंड दिस इज 30. ओके तो देन हाउ टू रिकैलकुलेट? एनीबडी हु कैन हेल्प? हाउ टू रिकैलकुलेट? अगर मान लेते कि दिस इज योर कपर 63 एंड दिस इज योर कपर 65, इसको अगर 100 करना है तो व्हाट इट विल बी? एनीबडी? Sir, 60 by 90 into 100. 60 by 90 into 100. Then what it will be? 6 by 9 into 100. So 6 by 9 will be 3 by 3, 2 by 3, 2 by 3 into 100. 2 by 3 is going to give you 2 by 3 कितना And the होगा? other 30 by 90 into 100. क्या? Give me the answer. You are telling me the fraction. I am just trying to. Okay, just a second. 2 by 3 into 100. Yes, that will be 66.67 and it will be 33 point anybody 33. Okay, so you can just recalculate like this. Okay, and how to do for this one? This will be 30. इसलिए हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब हम इनको जब कैलकुलेट करेंगे it will be 90. तो 90 का 60% ये है. ओके गेटिंग माई पॉइंट ना. तो जब 90 था ये 60% था, ये 30% था. जब 90 100 हो जाएगा सिंपली वन केसेस में ये हो जाएगा 100 by 90. ठीक है, तो फिर जब 60 था उसके केसेस में क्या हो जाएगा 60 into 100 divided by 90. सिंपल मैथमेटिक्स, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. Okay, so I'm just trying to jump into the next question. Okay, so now we have the question number 16. In this question we have a fault that is oblique sleeve and that fault has a depth of 30 degree. Okay, 30 degree, and it has a net slip that is about 10 meter at an angle of 45 degree to the strike of the fault plane. Okay, and the deep slip component of the fault in meters is given. deep slip component को हम क्या बोलते हैं net slip का? Anybody? Throw नहीं, throw is a vertical. Yeah. Okay, so just try to go through that. I am unable to listen that word. Okay, so मेरे को सुनाई नहीं दिया. Okay, we will just try to do for this question, then automatically we will get what is the component and all the things. Okay, तो what is the first thing that you have to do? तो मैंने आपको पहले बताया था, just try to do the geometry fast. If this is a fault like a fault oblique, तो क्या होगा? The fault will be look like this. Okay, this is a oblique sleeve fault. Now we have a net sleeve. Okay, तो अगर ये नेट स्लिप यहाँ से यहाँ तक नेट स्लिप, तो हाउ व्हाट इट इज़? अगर मान लेते कि ए बी, ये ए बी है, तो व्हाट इज़ ए बी? ए बी इज़ बेसिकली 10 मीटर. ओके, सो नाउ वी हैव, हाँ, तो ऑन दिस फॉल्ट प्लेन, तो फॉल्ट प्लेन कौन सा वाला है? तो दिस इज योर फॉल्ट प्लेन. दिस रेड कलर इज योर फॉल्ट प्लेन. उसका डीप कितना है? 30 डिग्री. ओके, and the most important thing is that the net slip which is in the red color, which is named also as AB, so it is making an angle of 45 degree to the strike of the fault plane. Where is the strike of the fault plane? This is your strike of the
फॉल्ट प्लेन, दिस इज योर स्ट्राइक. तो ये जो एंगल है ऑन दी फॉल्ट प्लेन, ओके, ऑन दी फॉल्ट प्लेन इट विल बी 45 डिग्री. ओके, गेटिंग माय पॉइंट ना. मैंने इसको इरेज करता हूँ बिकॉज आवर इमेजेस इज स्मॉलर. ओके, तो ये एंगल आपको पता है. तो ही इज आस्किंग अबाउट ये, अगर ये 45 है तो आप ये वाला एंगल ले सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल, अदरवाइज यू कैन जस्ट टेक दिस एंगल ऑल्सो. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू आस्क यू what is the value of BC in meter, in meter. Okay, and answer up to 2 decimal places. Okay, so you just have to calculate BC in triangle ABC. In triangle ABC, so BCA is basically in triangle ABC. Okay, तो हमको पता है कि which angle we have already know, BAC. This angle we guys already know, that is 45 degree. Okay, and BA is basically 10 meter. What is the trigonometry function we are going to use in order to find out the BC? Anybody? Sir, sine. Yes, very good. That will be sine. So sine 45 will be BC divided by AB. That means simply our interested part, that is BC will be AB into sine 45. AB को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो 10 इंटू साइन 45. व्हाट इज साइन 45? साइन 45 विल बी 0.7071 इंटू 10. तो दैट विल बी 7.07 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. दैट मीन द आंसर विल बी, ये कितना था? साइन 45 0.707. तो आंसर विल बी 7.07. दिस विल बी योर आंसर. ओके, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है. तो ये वाला जो 16 वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जैसा काम ही नहीं है. बस द मेन थिंग इज दैट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेट स्लीप एंड व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन. ओके ओके ओके. तो मैंने जो पहले आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ दी डीप स्लीप कंपोनेंट ऑफ द नेट स्लीप, तो इट इज़ बेसिकली, इसको हम डीप स्लीप कहते हैं. तो बेसिकली मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था तो ये इसको क्या क्या कहते हैं? दिस वन इज बेसिकली व्हाट एंड दिस वन इज बेसिकली व्हाट? एनीबडी? ये वाला क्या है? दिस इज योर थ्रोन. ओके, एंड दिस इज योर, एनीबडी? Sir, heap. Horizontal component is heap. Heap. Okay, तो ये heap and throne. Throne is the vertical, this is horizontal. Okay, okay, and this is your strike sleeve. ये बोला जो, this is your strike sleeve. It is along the strike direction of the fault plane, and this is along the deep direction of the fault plane. That is your deep sleeve. Okay, everything is clear. Okay, so now we just have to see some similar types questions. Okay, so we have a similar type question. Just try to do within 1 or 2 minutes. Let me check whether your answer is coming correctly or not, then we will discuss. Okay, see, so what is given here? The first thing is that the fault plane. आपने क्या किया ना, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखे ना, आप सिंपली फार्मूला लगा लिए. तो डीप कितना है, नेट स्लिप कितना है, फॉरगॉट टू ड्रॉ द जियोमेट्री. तो आई ऑलवेज टोल्ड, मैंने तब से कहते आ रहा हूँ कि जब से क्लासेस शुरू हुआ है या फिर डिस्कशन शुरू हुआ है कि ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द जियोमेट्री बाई व्हिच ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर. ओके, सब कुछ क्लैरिटी आपको आ जाएगा. तो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते हैं कि इन ए स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इट इज़ डिपिंग 45 डिग्री. सिंपली तो कोई भी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट तो पहले पढ़ लेते हैं, देन विल डू 45 डिग्री टुवर्ड साउथ, 60 डिग्री ईस्ट. ओके ओके. द नेट स्लिप कंपोनेंट हैविंग ए ट्रेंड ऑफ नॉर्थ 120 डिग्री इज 20 मीटर. ठीक है, नेट स्लिप कंपोनेंट, तो उसका जो ट्रेंड है नॉर्थ 120 डिग्री इज 20 मीटर. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीप स्लिप कंपोनेंट इन सेंटीमीटर. ओके, तो पहले अगर हम क्या करेंगे तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, देन विल सी. सिंपली अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हाउ इट विल बी लुक लाइक, दिस विल बी लुक लाइक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. दैट मीन दिस स्लिप विल बी along the strike. ओके, तो दिस विल बी स्ट्राइक. डीप है तो ये तो 90 डिग्री मैंने इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट हैज सम डीप दैट इज अराउंड 45 डिग्री. ओके ओके okay, is it clear? So let's do all the things. It is towards south 60 degree east. Okay, and the deep angle will be 45 degree. Okay, and the net slip component towards the north 120 degree. Okay, north 120 degree. If you're trying to see where is the north 120 degree, if this direction is the south 60 degree east, okay, so north 120 degree means, anybody who is getting it? Sir, 80 होगा. Along which direction? South 60 degree. South 60 degree. Okay, so it will be
if you're trying to see, this is your north, south, east and west. Okay, so south 60 degree east means it is south 60 degree east. It is simply 30, 90 plus 30, so that means it is also north 120 degree. Okay, okay, so north 120 degree. If you're trying to see, we have a net slip along the no, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा. तो ये जो 120 डिग्री है ना, तो इट विल बी चेंज इनटू 60 30, ये 60, दैट मीन्स इट्स नॉर्थ 30. ओके, तो इट विल बी नॉर्थ 30, सॉरी. ओके ओके, तो नॉर्थ 30, दैट मीन्स इट इज अलॉन्ग द स्ट्राइक. नहीं तो फिर स्ट्राइक स्लिप कैसे होगा? ओके, तो ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे होगा. 60 30 60, हाँ नॉर्थ 30, यस. दिस विल बी नॉर्थ 0, यहाँ पे ऐसे इसको कर लेते हैं, north 030 degree. Okay, so this will be like that. Okay, but that is not the matter, because if you are trying to see, it doesn't matter. Okay, तो ये trend इस direction में है. And what is the net slip component? तो net slip, this is the net slip, it is 20 meter. Okay, calculate the length of the deep slip. The answer is in the first line. So it is the strike slip fault, that means it does not have any deep slip component. Then you just don't have to read all the things. ये जो जितने भी यहाँ पे लिखा गया है, ऑल दी थिंग्स आर बेसिकली इन ऑर्डर टू कन्फ्यूज यू कि कैसे होगा, कौन सा वाला होगा, ऐसा नहीं. इफ यू जस्ट ट्राइंग टू सी, दिस इज द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, दैट मीन्स दिस नेट स्लिप विल बी अलोंग द स्ट्राइक. अगर स्ट्राइक की डायरेक्शन में हो रहा है, देयर विल बी नो डिस्प्ले कंपोनेंट, द आंसर विल बी एनीबडी, दैट विल बी 0. ओके, so whenever you are just trying to get this type of questions, so first just try to draw the geometry. In these cases there is some default that I just put north 120 degree, तो यहाँ पे north 030 degree बताना चाहिए था. Okay, but there will be no confusion. From the first line you can get the answer. Okay, okay, so anybody has any problem in this question? It is not a question actually. I think about many things कि कैसे एक न्यू क्वेश्चन बनाया जाए. तभी मैंने सोचा कि एक ऐसा बनाते हैं क्वेश्चन ताकि ये ऐसा लगे कि हाँ ये तो परफेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं है. ओके ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17. How to do this one? You just have to find out the porosity in percentage, and you have two density. One is your grain density, another is your ball density. You just have to calculate it from the total volume and the mass of the sandstone block. How to do that? Sir, 1 minus bulk density by particle density. 20%. Yes, the answer will be 20%, and the formula that Bikram said is going to be used here. Okay, first let me just tell you what is given here. So what is given? The total volume. The volume total is basically 10 centimeter cube. Okay, and what is the mass? Mass total, that will be 20 gram. Okay, then what will be the bulk density? The bulk density will be gram. Anybody? Okay, okay, is it okay for everybody? The bulk density will be 2.0 gram per centimeter cube. Okay, and the grain density is already given. The grain density is going to given, that is 2.5 gram per centimeter cube. Okay, and the formula we guys already know about it, that is basically simply 1 minus बॉल डेंसिटी. देखो यहाँ पे कभी कभी मैं भी ये बात हर बार बताता हूँ कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि पहले 1 था या फिर कुछ ऐसा कुछ था क्या. पोरोसिटी केसेस में हर वक्त में 1 आगे आएगा. अगर कभी कभी ऐसा लगे कि ग्रेन ऊपर था, डेंसिटी ऑफ द ग्रेन ऊपर था या नीचे था, तो इन दैट केसेस जस्ट थिंक अबाउट इट. 1 से अगर हम कुछ चीज़ को माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स इट विल बी लेसर देन 1. ओके, देन व्हाट इज द ग्रेटर इन बिटवीन द बॉल डेंसिटी एंड ग्रेन डेंसिटी? व्हिच वन इज द ग्रेटर? Anybody? Bulk density. Which one is the greater one? मतलब किसका ज़्यादा वैल्यू होगा? डेंसिटी. डेंसिटी हर वक्त ज़्यादा ही होगा. ओके, तो इसलिए जब हम कोई बड़ा, अगर मान लेते कि बिगर वन, बिग से स्मॉल को डिवाइड करेंगे, देन विल गेट द वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 1. सॉरी, लेस देन, यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 1, बट व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट ए वैल्यू व्हिच इज लेस देन 1, बाय व्हिच वी कैन सब्सट्रैक्ट देम फ्रॉम 1, एंड देन वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 100 इन टू फाइंड आउट द पोरोसिटी. ओके, सो दैट्स वाई डोंट कन्फ्यूज. अगर कहीं पे अगर एग्जाम केसेस में अगर भूल गए कि पहले ग्रेन था या ऊपर में ग्रेन था या बॉल था, तो इन दैट केसेस यू कैन जस्ट यूज योर
आपका मतलब आप ऐसे भी फंडामेंटल्स यूज़ करके निकाल सकते हैं कि पहले कौन सा वाला था. ओके, सो जस्ट कम टू आवर सोल्यूशन. दैट इज योर बॉल डेंसिटी, व्हाट इट इज़ 2.0 एंड 2.5. सिंपली 2/20, 20/25, सॉरी 20/25. ओके, तो इंटू 100. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/20/25. तो इसको अगर हम काटेंगे इजीली तो दैट विल बी 4 1/1 minus 4/5 into 100. Simply, तो 5 minus 4/5 into 100, that will be 1/5 into 100. 1/5 will be 0.2 into 100. It will be 20%. Okay, the answer will be 20%. Okay, is it clear? Let's see some similar types questions. अगर कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम्स है ना, please tell at that moment, by which it will be easier to clear all the doubts. Okay, okay. So let's jump into the similar types questions. Okay. रीड क्वेश्चंस केयरफुली. भूल मत जाना कि लास्ट केसेस में क्या होता है. आपने पहले सेंटेंस में मतलब गलतियाँ कर दी हैं ताकि आपका आंसर भी नहीं निकला, या फिर निकला तो गलत निकला. तो इसलिए रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस कि मतलब कैसा है. डायग्राम कर लो या फिर कहीं पे लिख लो कि बहन ये है वो है क्या पूछा है, या फिर डायग्राम करके समझ लो. मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजियोलॉजी केसेस में जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द जियोमेट्री. ओके, कि ऐसे एक बॉल है, यहाँ पे इतने पोरोसिटी हैं, इतने वॉल्यूम सॉलिड वॉल्यूम है एंड ऑल दी थिंग्स. If you are confused about the sandstone core sample, let me just clear the confusion. Sandstone core means, what is the shape? Anybody? Sphere. क्या होगा? Cylindrical. Cylindrical. Okay, so this will be a cylindrical. Cylindrical means you just have to find out the volume. तो फिर क्या होगा cylinder cases में? Pi r square h. Pi r square. It is basically the perimeter of the circle. Then this is your height. Okay, and this is your radius. So it will be pi r square h will be volume. Okay, so this is sufficient I think in order to find out the answer. बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है कि कैसे करके निकालना है. ओके, सी यहाँ पे सैंडस्टोन कोर सैंपल, उसका डायमीटर आपको दिया गया है. फ्रॉम द डायमीटर ट्राई टू फाइंड आउट द रेडियस. ओके, दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे है. द रेडियस विल बी 2.5 डिवाइड बाई 2. कितना होगा? 1.25. ओके ओके, एंड द लेंथ इज गिवन हियर. The weight is given here 170 gram. Assuming the reservoir rock sample, that is basically the sandstone core, is mostly of sandstone lithology with a grain density. मतलब इसका grain density दिया गया है, that is 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Calculate the porosity. Simply यहाँ से आपको ball density निकालना है and the grain density is given here and calculate the porosity in percentage. Can you guys do it? तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोर? वॉल्यूम ऑफ द कोर मैंने क्या बताया था कि पाई दैट इज 22/7. तो उसको डायरेक्टली हम इसमें इंसर्ट कर देंगे कैलकुलेटर में. पहले लिख लेते हैं. देन व्हाट इज़ द डायमीटर? दैट इज 2.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, दैट इज द रेडियस उसका स्क्वायर, इनटू व्हाट इज़ द हाइट? हाइट इज गिवन हियर. द लेंथ दैट इज 30 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में. ओके, तो ये थोड़ा सा मत भूलना. तो दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो वेट यहाँ पे कितना दिया गया है? व्हाट इज द वेट ऑफ द सैंडस्टोन कोर? दैट विल बी 170 ग्राम. ओके, देन the volume, the ball density will be calculated here by using the calculator, and the grain density is basically given here. The grain density यहाँ पे दिया गया है 2.65 ग्राम per centimeter cube. Okay, then we just have to find out the porosity, that is 1 minus density of the bulk density and grain density into 100. Okay, okay, so let's open the calculator and do the calculations. Okay, so first thing is that we just have to find out the volume. So what is the volume? Volume is pi into 2.5, sorry पहले 2.5 को कर लेते हैं because that is a fraction. 2.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है. देन उसके बाद उसका स्क्वायर इंटू पाई इंटू क्या था 30. ओके, द वॉल्यूम इज 147.2621. ओके, वॉल्यूम कितना हुआ?
147.262 को छोड़ देते हैं. ओके, फॉर दिस टाइम बिंग नाउ. ओके, देन व्हाट विल बी दी डेंसिटी, बॉल डेंसिटी, दैट विल बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स मास बाई वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हमारा ये निकल गया. वेट इज़ ऑलरेडी गिवन 170 ग्राम. तो फिर हम उसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, मेमोरी क्लियर, जो कि पहले जो सेव था, देन दैट इज़ मेमोरी सेव, ये मेमोरी सेव हो गया. देन 170 divided by memory read. Okay, this is your ball density. What is the ball density? That is 1.15. Okay, 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नाउ हमारे पास हाँ, वेट और मास में जैसे वेट होता है mg और ऐसे मास होता है ma, तो हम लोग वेट को mg लिख सकते हैं ग्रेविटी के साथ. that is not required here. Okay, if you is trying to see here, if you is trying to see mass into gravity, so you are correct, mass into gravity, that is basically weight. Okay, but in these cases the mass and weight, all the things is not mentioned here, so don't worry about that. Okay, ओके सर. ओके, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या करोगे ना, तो आप फिर यहाँ पे 9.8 मल्टीप्लाई कर दोगे, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर. अगर कहीं पे दिया गया होगा देन इट विल बी मेंशन्ड हियर कि आपको पहले मास को वेट में कन्वर्ट करके एंड ऑल द थिंग्स यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट अगेन. ओके, ओके सर. ओके, दिस इज योर बॉल डेंसिटी. बॉल डेंसिटी वी हैव ऑलरेडी 1.15. तो फिर उसमें 2.65 को डिवाइड कर देंगे पहले. 1.15 डिवाइडेड बाय 2.65. ओके, तो फिर उसमें से हमको 1 माइनस इतना करना था ना. ओके, मेमोरी क्लियर करके सेव कर लेते हैं. देन 1 माइनस इतना इंटू 100. तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर, दैट इज 56.43 समथिंग, इससे कुछ था ना ऐसा. तो इसको यू कैन जस्ट राउंड ऑफ, आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यू कैन जस्ट राउंड ऑफ, दैट विल बी कमिंग अराउंड 56.44. ओके, यू गैस कैन डू इट. सी, तो मैंने कैसे कैलकुलेटर यूज़ किया विदाउट चेंजिंग दी वैल्यूज और विदाउट जस्ट री टाइपिंग ऑल दी थिंग्स. ठीक है, तो बस यू कैन जस्ट सी कि हाउ टू डू ऑल दी थिंग्स. दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड आवर कैलकुलेटर इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, बाई विच दैट विल बी प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करके भी आप ऐसे भी कर सकते हैं. देयर विल बी नो नीड ऑफ राइटिंग ऑल दी थिंग्स. यहाँ पे आप ये जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू कैन अवॉइड देम ऑल्सो. ओके, 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 आई एम जस्ट ट्राइंग टू जंप इनटू क्वेश्चन नंबर 18. तो in this question, so it is basically asked about the specific gravity. There is a simple formula. It has a weight in air and weight in water, and density given है 1 gram per centimeter cube. That is similar with the 1000 kg per meter cube. So there will be no changes. Okay, तो यहाँ पे एक formula है, that is the simply anybody who know what is the specific gravity formula if the density of the water is basically lesser than all the density that is given. Specific gravity is equal to density of material by density of water. Specific gravity. Sir, weight of water by weight of water minus weight. No, sorry, weight of air by weight of air minus weight of water. Weight of air या फिर weight of object in air. Weight of object in Weight air. of object in air. हाँ, yeah. Okay, I got it, but I just okay. So that is basically, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि what is given. तो weight of object in air, that is basically 4.5 gram. 4.5 gram. तो weight of object in water, that is basically 3.2 gram. Okay, what is the specific gravity? It is weight in air. Okay, weight of the object in air, and this simply weight in air minus weight in water. Okay, तो यहाँ पे कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 माइनस 3.2. तो 4.5 डिवाइडेड बाय 1.3 आई थिंक. ओके, तो दैट विल बी सिंपली 45 डिवाइड बाय 13. तो द आंसर विल बी the answer will be 3.46. okay, so this will be your specific gravity. Specific gravity cases में कोई यूनिट नहीं रहता. okay, okay, so this is the simple formula you can use. okay, it is given in नेसे में दिया गया है और बांगर में आपको कहीं पे भी आप देखोगे तो मिल जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज वेस्ट इन एयर एंड साइमल्टेनियसली इन वाटर. ओके, सो दिस इज योर सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 26. सी, हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं दैट मे बी 20,
लेकिन उसके अलावा हमने और 26 भी किए हैं सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चन. दैट इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके ओके. what is asked here? Anybody? Same thing, just have to do the calculations and let me know whether your answer is correct or not. स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे करते हैं? But what is the value of 16.3 minus 9.1? 16 minus 9, that will be 7. 7.2. Yes, 7.2 I think. 3 minus 1 2, 16.937. So 16.3 divided by 7.2, that will be 2.64, 2.264. Okay, so this will be the correct answer. Okay, be more accurate about the decimal, otherwise all the calculations will be मतलब ऐसे ही चला जाएगा पानी में, आपका जितने भी मेहनत किए होंगे या फिर ऑल दी थिंग्स. सो दैट्स वाई बी केयरफुल अबाउट द डेसिमल्स एंड द कैलकुलेशंस. न्यूमेरिकल ऐसा एक चीज़ है, आपको डायरेक्टली मतलब वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क भी नहीं है. अगर गलत भी हो जाता है ना तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी नेगेटिव मार्क ऑल्सो. सो बी केयरफुल. डायरेक्टली मतलब ऐड हो जाएगा, नहीं तो फिर 0 हो जाएगा. ओके ओके. सो दिस इज ये तो स्टैटिक ग्राफ वाला हो गया ना. ओके. एनीबडी हु नो the duration of the protozoic? If you are going to see the duration of the protozoic, तो क्या होगा पहले? What is the okay, यहाँ से लिख लेते हैं. प्रोटोजोइक के लिए लिख लेते हैं, देन उसके बाद वी आर गोइंग टू डू. ओके, व्हाट इज द एज? दैट इज 4.6 GA. ओके, अदरवाइज 4600 भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन उसके बाद 4 में एक आएगा, देन 2.5 में, देन 541 में. कुछ अगर न्यू मेथड के हिसाब से कुछ चेंजेस हुआ होगा, लेकिन आसपास में ही होगा. ओके, देन व्हाट इज द एज रेंज फ्रॉम 4600 टू 4000 मिलियन ईयर्स एगो? व्हाट इट इज? एनीबडी? हाइडियन. ओके, एंड दिस इज आर्कियन. सॉरी, आर्कियन. मैं प्रोटोजोइक लिख रहा था. दिस इज आर्कियन एंड दिस इज प्रोटोजोइक. आर्कियन केसेस में कितने डिविजन्स हैं? यो 3. पालियो, मेजो, नियो. ओके, यू आर्कियन, पालियो आर्कियन, मेजो आर्कियन एंड नियो आर्कियन. 4 है. यो, पालियो, मेजो, नियो. एंड प्रोटोजोइक केसेस में एनीबडी? 3. पालियो, मेजो, नियो. ओके. पालियो टू मेजो, ये कितना है? 2.5 टू 2.0. 2.5 टू नो 2.0, दैट इज 9 माइनस होगा, दैट इज 1.6 आई थिंक. 1.6 ना. दीज आर ऑल इन दी GA. ओके, दैट मीन्स 10 to the power minus 9. सॉरी, 10 to the power 9, नॉट -9. ओके, 1.6. तो 1.6 से ये कितना दूर जाएगा? पालियो, मेजो और नियो का जो बाउंड्री है, इट विल बी अराउंड 1000. ओके, 1000 मिलियन ईयर्स एगो, और अदरवाइज 1.0 इंटू 10 to the power 9. ओके, सो दिस इज द स्केल, यू गाइस ऑलरेडी नो. ओके, तो इसको बस यूज करके यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर दिस न्यूमेरिकल. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटोजोइक एरा? दैट इज 2500 माइनस 541. तो कितना होगा? और सिंपली ये 531 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. $1959. Okay, it is given here में, तो there is no requirement. Okay, and there is no similar practice question like that. तो ये questions मतलब बहुत simple सा हैं, तो I don't want to waste your time. Okay, so this is your question number 20. It is the last question. Then उसके बाद कुछ similar practice questions होंगे. Then after that we are going to close the session. Okay, so anybody, so what is happening here? So which one is, what is the formula of the hematite? Anybody? Two things is here. If you know the formula of the magnetite and the hematite, you can easily do this question. There will be no problem. So what is the formula of the hematite first? So Fe2O3 and Fe3O4. So what is given here? From the given equation which is given here, 6 hematite is going to be reduced in order to form 6 means it is the 6 moles of, okay, 6 moles of hematite is reduced to form 4 moles of magnetite plus oxygen that is in the gas format. Okay, so it is asked how many moles of magnetite will be produced by the reduction of 1 mole of the hematite. Okay, तो ये पूछ रहा है कि
वन मोल ऑफ हेमाटाइट अगर रिड्यूस होता है देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नेटाइट इज गोइंग टू बी फॉर्म. तो लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है. 6 moles of hematite is basically reduce how many moles of magnetite? Anybody? 4. 4 moles 4. of magnetite. Okay, then 1 mole of hematite is going to be formed 4 by 6. 4 by 6 moles of magnetite. Okay, तो what is the, this is basically 2 में अगर करेंगे तो 2 by 3. अभी अभी कैलकुलेट किए थे 2 by 3. तो what it is? 0.666. 0.666. If you're trying to see if 0.667. हाँ, if you want to be more accurate, ये ऐसे 6666 चलता है. If you're trying to be more accurate, then you can put a 7 here in order to round up to 3 decimal places. Okay, this is the number of moles is going to be formed by the reduction of 1 mole of hematite. Okay. Okay, so this is the last question, I think. This is the last question. I'm not going to help to solve this one. Try to solve yourself, then I'm going to check how many students are getting correctly or not. See, don't sit like कि सर तो solve भी कर देंगे. No, because you have to attend in the main examinations. ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे भी ऐसे अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल इन दी वेरी बिग ट्रबल. सो थोड़ा सा ट्राई करो कि एटलीस्ट करने के लिए कि क्या ऐसे इसको कैसे करना है. ओके, आई एम वेटिंग. बट ए सिंपल वन, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, मतलब 1-2 सेंटेंस में नहीं होगा. मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. ओके, तो इसको पहले बैलेंस करना होगा. दिस इज द लास्ट हिंट दैट आई कैन गिव यू, गिव एवरीबडी ऑल्सो. दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, तो पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा. You can see here the element in the reactant side, it is Fe2. Two numbers of Fe element is given here, but here it is 1. So then first before proceeding into the calculations, first balance it. पहला हिंट तो मैंने दे दिया था कि you just have to balance that equation. Second thing is that what you just have to find out. The hematite is here, you can just do that. hematite यहाँ पे है, तो पहला चीज़ आपको क्या करना है कि आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हेमाटाइट पहले निकालना होगा. ठीक है, कि 1000 kg ऑफ हेमाटाइट में कितने मोल्स ऑफ हेमाटाइट हैं. ठीक है, तो फिर वहाँ से फिर क्या करोगे, ये जो आपने इक्वेशन बैलेंस किए होगे, फ्रॉम दैट बैलेंस इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि अगर 1 मोल ऑफ हेमाटाइट डिडक्ट होता है तो 1 कितने मोल ऑफ आयरन देता है बैलेंस करने के बाद. तो फिर 1 kg हेमाटाइट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ हेमाटाइट. तो फिर वहाँ से फिर आप इसका मोल्स निकाल सकते हैं, किसका, आयरन का. देन यू गाइज ऑलरेडी नो आयरन का एटॉमिक मास, यू कैन, दिस इज 55.85 ग्राम, मैंने ग्राम कर दिया है. देन यू कैन इजीली फाइंड आउट 1 मोल अगर 55.85 हुआ तो फिर इतने मोल, जो भी मोल आपका लिया होगा, देन एक्स नंबर ऑफ मोल्स विल बी एक्स इंटू 55.85. इज इट क्लियर? ओके, सी, तो पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं. दिस इज Fe2O3 एंड दिस इज H2. ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू आर गोइंग टू पुट Fe को पहले कर लेते हैं. Fe को यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, देयर बी नो प्रॉब्लम. ओके, तो देयर इज ऑक्सीजन नंबर इज 3, तो 3 ऑक्सीजन इट इज़ बैलेंस, बट इन दिस केसेस द हाइड्रोजन विल बी 6, तो इसलिए वहाँ पे 3 कर देते हैं. ओके, तो इज इट क्लियर? नाउ वी हैव द बैलेंस्ड इक्वेशन. balance, this is the balance equation. Now you can use, okay, tension without any tension. Okay, तो मैंने क्या बताया था पहले कि this equation, तो पहले given mass of the Fe2O3, तो what is the given mass? Anybody, what is the given mass? 1 kg, that is your 1000 gram. Okay, this is किसका given mass है? This is the given mass of hematite. Okay, Fe2O3. Okay, so what is the molecular mass of Fe2O3? What it will be? 2 number of Fe, that means 2 into 55.85. अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे दिया होगा तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. 2 into 55.85 प्लस 3 into ऑक्सीजन का कितना है 16. ओके, तो 2 into 55.85 प्लस ये हो जाएगा आपका 48, तो ये कितना हो जाएगा 55.85 का 159.7. तो इसको अगर मिला देंगे तो इट विल बी 15.7 ग्राम पर मोल.
1 मोल ऑफ हेमाटाइट इज गोइंग टू गिव यू 159.7 ग्राम. बट यहाँ पे हमारे पास कितने ग्राम का है, 1000 ग्राम का. तो फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना कितने मोल ये होगा. सिंपली 1000 डिवाइडेड बाय 159.7 ग्राम पर मोल. तो इट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मेनी मोल्स, 6.26 number of moles of hematite. Okay, so now if you are going to see this equation, so in this equation 1 mole of hematite is basically reduced to give 2 mole of iron. तो मैंने इसको ओमिट कर देता हूँ, ये 3H2O को ओमिट कर, दिस इज द बाई प्रोडक्ट. ओके, तो 1 mole of hematite is basically going to give you 2 mole of iron. So 6.26 mole of hematite is basically going to give how many moles of iron? Anybody? 2 into 6.26 number of moles of iron. So it is basically what? 2.62? 12.52. 12.52. Very good. 12.52 moles of Fe. So we guys already seen 1 mole of Fe is basically 55.85. तो 12 मोल ऑफ ये कितना होगा, 12.52 इंटू 55.85. तो इट विल बी, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 55.85 इट विल बी 699.242. दिस विल बी द आंसर. ओके.